So students, here we have taken Zn plate, and this Zn plate is dipped into the aqueous solution of CuSO4 solution. Okay, and whenever zinc plate is dipped into the solution, again whenever zinc plate is dipped into the solution, so at that time here we know that zinc is more reactive than copper. Zinc is more reactive than copper, so at that time zinc releases the electrons. Okay, zinc releases the electron, and here Zn strip which is dipped into the CuSO4 solution. So here zinc releases the electrons, and then finally we are getting here the copper solid on the surface of Zn strip. And here copper strip is means copper atoms are formed on the surface of zinc, at which only the part which is dipped into it, मतलब जो dipped है उसी part पे, मतलब इतने ही part पे वो है, देख लो. Okay, so this is the final मतलब resulting solution, resulting state. This one is the initial state and this one is final or resulting state. होगा क्या यहाँ पे? We know that zinc is more reactive than copper, so that zinc releases the electrons. This reaction is known as oxidation. Reduction, Cu2 plus 2 electrons gives Cu solid. Okay, and then after this reaction takes place, Zn solid plus Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus Cu solid. Okay, now the question is, then any metal strip can be put in any solution of metal ion. Is it true? Answer is, any metal strip can be put in any solution of metal ion. So whether reaction will occur or not, is it true or false? Any strip is dipped into the solution of any metal ion and reaction will occur. Is it right? No, sir. No. And the redox reaction is occurred. Answer is no. No. Why? Because which condition redox reaction is possible, and the condition Sir, is reactivity series more reactive metal is in solid form and it is in contact with the less reactive metal ion, then only this redox reaction is possible. So for that we have to learn the reactivity order of the metals, and this one is the order: Like, Kana, Mag, Al, Zincro, Acidiconi, SNPB, CuAg, Au. ओके, 10th में पढ़े होंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आता होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है. तो on the basis hydrogen is non-metal, so why is it put here? Because with respect to hydrogen, here oral series is obtained. Okay, that's why hydrogen is put. Okay, so here due to redox reaction, flow of electron is obtained internally from strip to solution. So if we get the flow of electron in outer circuit, is it possible? Then answer is yes. So by this thought, an electrochemical cell is prepared. Okay, and here there are two types of cells. Number one is electrochemical cell, number two is electrolytic cell. Both are differed by their principles. Here for electrochemical cell, the principle is here chemical energy is converted into electrical energy. Okay, and this cell is known as galvanic cell or voltaic cell. Another side, for electrolytic cell, the principle is here electrical energy is converted into केमिकल एनर्जी. ओके, और उसका एग्जांपल है कॉपर वोल्टामीटर. मीन्स इसका एग्जांपल क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड.
Okay, so now the first cell was prepared by the scientist Daniel, so it is known as Daniel cell. Here, Zn strip is dipped into the ZnSO4 solution, and copper strip is dipped into the CuSO4 solution. Okay, here NH4NO3 is used. In plus of it, sometimes KNO3 or KCl or NaCl, any other are used here. With cotton plug, this salt bridge, the face of salt bridge is closed. So the solution is ZnSO4. Here the solution is of CuSO4. A reaction is occurred here. Okay. Then here, if I say any metal strip is dipped into the solution of its positive ion, and then this part, see, here Zn strip releases the electrons and Zn2 plus ions are produced. Similarly here, copper strip is dipped into the CuSO4 solution, so that here Cu2 plus ions gain the electron to give the Cu solid. Okay, and a reaction is occurred. Okay, so this one is the Daniel cell. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी आज के लेक्चर में अगेन थोड़ा बेसिक ले रहे हैं हम. सपोज आपको एक इलेक्ट्रोड और इतना आपको दिया है, तो देखो मैग्नीशियम स्ट्रिप इज डिप्ड इनटू द MgSO4 सॉल्यूशन, कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड इनटू CuSO4 सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज इज पुट. ओके, अब आपको मेंशन क्या करना है, चलो देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों की हाफ सेल कौन सा है वो आपको इंडिकेट करना है. हाफ सेल का मतलब क्या है पता है, कौन एनोड कौन कैथोड, वो भी आपको इंडिकेट करना है. तो हाफ सेल मतलब स्ट्रिप एंड द सॉल्यूशन, दिस पार्ट इज नोन एज हाफ सेल. तो अब याद करवाओ मुझे, डेनियल सेल में कौन सा था, डेनियल सेल में कौन कौन से हाफ सेल्स थे. ZnSO4 एंड CuSO4. आप पूरा सोल्यूशन भी लिख सकते हैं या तो फिर इतना भी लिख सकते हैं, Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस, इजंट इट. ओके, आपको ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं हाफ सेल्स और ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं हाफ सेल्स. ओके, सो इसका नाम है हाफ सेल. हाफ सेल और दो हाफ सेल कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, कंप्लीट सेल बनेगा. ओके, और यहां पे कौन सी रिएक्शन होती है वो भी आपको इंडिकेट करना है. तो चलो पहले से Mg एंड Cu कौन सा ज्यादा रिएक्टिव, Mg या Cu अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज. Mg is more reactive than Cu. So Mg will act as an anode and Cu will act as a cathode. समझ आया. देखो कौन कौन से हाफ सेल्स हैं, Mg Mg2 प्लस देन Cu Cu2 प्लस. समझ आया. चलो रिएक्शन कौन सी होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, Mg एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा देख लो, Mg सॉलिड गिव्स Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu. ओके, और फिर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी ये. अब लास्ट स्टेप क्या दिया है, सेल नोटेशन. तो सेल नोटेशन में हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड. ये जो डबल लाइन है, डबल लाइन इंडिकेट्स सॉल्ट ब्रिज, दिस वन. ओके, जो डबल लाइन इंडिकेट करते हैं दैट इज सॉल्ट ब्रिज. लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलवेज एनोड इंडिकेट करेंगे, राइट हैंड साइड पे कैथोड. और ये जो डबल लाइन इंडिकेट किया ना उसकी दोनों साइड ऑलवेज आयंस आएंगे. क्या आएगा, आयंस. इतना याद रखना है आपको. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल. तो आपको अब सबको जो भी यहां पे एग्जांपल्स दिए हैं, चलो सेकंड देख लो. Mg और Zn. नाउ टेल मी विच इज मोर रिएक्टिव, Mg और Zn. So that Mg will be anode, Zn will be cathode. Okay, Mg
Mg2+ एंड Zn2+. चलो सेल रिएक्शन एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे देख लो रिडक्शन, और दोनों का टोटल. और यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, और दोनों इंडिकेट किए. ये सेल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, नेक्स्ट. चलो थर्ड वन, Cu and Fe. नाउ टेल मी विच इज मोर रिएक्टिव? FE. Fe. So Fe will be anode and Cu will be cathode. Okay, Fe will be anode and Cu will be cathode. तो दो हाफ सेल्स, हाफ सेल तो ऐसे इंडिकेट किए करते हैं हम, Cu2+, Fe2+. दोनों की सेल रिएक्शन, दोनों का सम करोगे तो आपको क्या रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगी. और ये देख लो रिएक्शन. नेक्स्ट. चलो बताओ, Zn and Fe, which is more reactive? Zn. So Zn will be anode and Fe will be cathode. Simple. Okay? देख लो ये रिएक्शन होगी. और लास्ट में सेल नोटेशन. ओके, चलो Mg and Fe. Mg is more reactive. So Mg will be anode and Fe will be cathode. Simple. ओके, Mg anode, Fe cathode, दोनों का हाफ सेल देख लो, दोनों के हाफ सेल हाफ रिएक्शन देख लो, देन रिएक्शन एंड देन फाइनली सेल नोटेशन. ओके, चलो तो ये हुआ सेल नोटेशन. ओके, तो अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ओके, चलो अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या. सो वी नो दैट इन Daniell cell we are getting the flow of electron. Again, in Daniell cell we get the flow of electron from anode to cathode in outermost circuit. Again, we are getting the current, the flow of electrons from anode to cathode. चलो अब ये तो पता होगा कि Zn is an anode and Cu is a cathode. So flow of electron is obtained from anode to cathode in external circuit. Okay, so ये जो flow of electron है, that is a current. But what is meant by this potential? पोटेंशियल का मतलब क्या है? सो पोटेंशियल मीन्स इट्स एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर. अगेन, ये है क्या? इलेक्ट्रिकल प्रेशर है. एंड ड्यू टू दिस प्रेशर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडर दिस प्रेशर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड from anode to cathode in external circuit. So in external circuit, flow of electron is obtained. Okay, flow of electron is obtained. तो ये जो प्रेशर है ना, that is the cell potential. और ये सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला है E0 cell equals E0Z of cathode minus E0Z of anode. चलो अब मुझे एक्सप्लेन करना है व्हाट इज मीन्ड बाय दिस E0Z. So E0Z means it's a reduction potential. It's a reduction potential. Now how would we know that the given potential is of reduction potential? मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे?
इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी ऐसे, देख लो, इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे होगी. सपोज यू आर गिवन E0 Zn2 plus Zn. This value is -0.76 वोल्ट. साइन से नहीं पता चलता है, लेकिन यहाँ पे E0 के नीचे हम जो भी लिखते हैं उसमें हम क्या करेंगे, देख लो, यहाँ पे है Zn2 प्लस, यहाँ पे है Zn, यहाँ पे Zn2 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, पता है ना, और Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0. तो +2 to 0, देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज. अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, दैट मीन्स दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल. सिंपल. तो अगर इसको मुझे ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करूंगा पता है, सिर्फ ये इन्वर्ट कर दो दोनों, E0 Zn Zn2 प्लस, तो ये होगा नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव 0.76 वोल्ट. Isn't it? It is 0.76 वोल्ट. अब देखो ये 0, ये +2, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो स्टूडेंट्स, अब अगर आपको फंडामेंटली याद रखना है तो फिर फंडामेंटली याद रखो. शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं. अगर स्लैश के बाद पॉजिटिव दिया है तो ऑक्सीडेशन, बिफोर स्लैश पॉजिटिव दिया है देन रिडक्शन. लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, कब पता है, सपोज यू आर गिवन लाइक दिस, चलो इसकी वैल्यू है -0.77 वोल्ट. नाउ टेल मी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन कैसे पता चला, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, 3 to 2 इंक्रीज हुआ ना, क्या, हाँ डिक्रीज हुआ, देन दिस वन इज रिडक्शन रिएक्शन, देन द गिवन पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल. सो अगेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो चलो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी आपको कि कैसे होगा. अगर दोनों आयंस हो तो फिर तो शॉर्ट ट्रिक का ऐसे काम लगेगी. तो फिर तो जो मेन फंडामेंटल है वो मैंने सिखा दिया कि आप पोटेंशियल कैसे डिसाइड करोगे. ओके अब देखो, सबके पोटेंशियल्स वैसे तो उनकी वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हियर डिफरेंट पोटेंशियल्स आर डिटरमाइंड. और उसको अगर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम उसको लिखते हैं तो उसका नाम है EMF सीरीज. ओके तो अब देखो यहाँ पे आपको EMF सीरीज दी है पूरी. EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके यहाँ पे आपको E0Z रिडक्शन पोटेंशियल के उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिया है. देख लो, एज वी गो डाउन देन रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेज. रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता चला, तो देख लो यहाँ पे जो रिएक्शन दी है वो कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन. इन ऑल द रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, मीन्स रिडक्शन रिएक्शन. अब EMF सीरीज से एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता चलती है. चलो इतना तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है. ओके तो चलो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. देखो यहां पे हम जाते हैं अप टू डाउन, और यहां पे लिखेंगे डाउन टू अप, and here we are writing the characteristics one by one. First is tendency to be anode. चलो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, Oxidation. so tendency to undergo oxidation reaction. ओके चलो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स
ऑक्सीडेशन में क्या होगा? or electrons will be reduced. Electrons will be released. So tendency to release the electrons. अब खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मतलब सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब सामने वाले का रिडक्शन हुआ, तो खुद को क्या बोलेंगे हम? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ लिख रहा हूं. ओके चलो, सिमिलरली यहां पे 5, 6, 7 और 8. चलो, जैसे टेंडेंसी टू बी एनोड लिखा तो यहां पे हम लिखेंगे टेंडेंसी टू बी कैथोड. चलो, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? Reduction. सो टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन. अब यहां पे रिडक्शन रिएक्शन की टेंडेंसी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी. और खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ. चलो, तो ईएमएफ सीरीज में हमने देखा यहां पे एज वी गो डाउन देन व्हाट हैपेंस? रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस. अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा ना, वो कैथोड होगा. आगे प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से. देखा ना, यहां पे -0.76 रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे, या तो फिर कोई भी दो ले लो, तो जो डाउन वाला होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा. तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा और चलो हाई होगा वो कैथोड. तो अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हुआ वो क्या होगा? एनोड. तो दोनों में से देखो, अब चलो ये 0.77 और 0.52 बोलो, कौन एनोड होगा? 0.52 वाला एनोड, मतलब जो डाउन होगा वो एनोड. चलो, ये 0.52 यही रख रहे हैं हम और नीचे वाला कोई ले रहे हैं, तो अब बोलो कौन एनोड होगा? 0.10. चलो, और कोई नीचे का लेंगे तो फिर एनोड कौन होगा? 0.14. और कोई नीचे का लेते हैं तो फिर एनोड कौन होगा? नीचे वाला ही होगा. सो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा? एनोड बनने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी. फिर से एक्सप्लेन करता हूं. चलो हाँ, फिर से पूरा का पूरा. दिस वन इज अवर ईएमएफ सीरीज. एंड विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर फॉर्म्ड बाय ईएमएफ सीरीज? So here you are given the reduction potentials in descending order. So if we consider any two, then down will be anode. चलो, यही रख रहे हैं, और कोई नीचे वाला ले रहे हैं तो फिर डाउन विल बी एनोड. और कोई ले रहे हैं डाउन विल बी एनोड. और कोई ले रहे हैं डाउन विल बी एनोड. और कोई ले रहे हैं डाउन विल बी एनोड. तो जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? एनोड बनने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, that will be cathode, and low, that will be anode. Simple. Okay, चलो, तो टेंडेंसी टू बी एनोड, तो अप टू डाउन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एनोड बनने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी. अब एनोड बनने की टेंडेंसी इंक्रीज, दैट मीन्स टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंक्रीजेज, टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज. अब खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है मतलब वो सामने वाले का रिडक्शन कर पाएगा, दैट मीन्स उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी. ओके, जैसे जैसे डाउन जाता है वैसे एनोड बनने की टेंडेंसी अगर इंक्रीज होती है तो फिर भी कैथोड बनने की टेंडेंसी क्या होगी? चलो, कैथोड बनने की टेंडेंसी डिक्रीजेस, दैट मीन्स टेंडेंसी टू अंडरगो
reduction reaction decreases, that means the tendency to gain the electron decreases, और खुद की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा, दैट मीन्स इट ऑल्सो डिक्रीजेस. चलो, अप टू डाउन अगर इंक्रीज हो रहा है तो डाउन टू अप, decrease, अगर अप टू डाउन डिक्रीज हो रहा है तो डाउन टू अप. increase, तो इनडायरेक्टली मैंने यहां पे टोटल आपको 16 एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए. चलो, एमसीक्यू नंबर 1. इन ईएमएफ सीरीज एज वी गो अप टू डाउन, टेंडेंसी टू बी एनोड डैश, और 4 ऑप्शंस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, कान बी सेड. आंसर इज, increases, तो अप टू डाउन वाले ये 4, एनोड वाले 4, कैथोड वाले 4. कितने एमसीक्यू हुए? 8, सिमिलरली डाउन टू अप जाएंगे तो फिर, decrease, और यहां पे increase, और 8 एमसीक्यू. टोटल कितने हुए? 16, 16. लेकिन ऐसा एग्जाम में थोड़े कम पूछते हैं. चलो, तो कैसे पूछते हैं, चलो अभी आगे देखते हैं. आज सपोज यू आर गिवन 4 इलेक्ट्रोड्स, A, B, C and D have reduction potentials -0.76 volt, -0.81 volt, -0.67 volt and 1.4 volt. Then decreasing order of reducing power. ओके, चलो यहां पे लिखना है ए बी सी डी में से क्या होगा. तो चलो, सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दिए हैं, ए, बी, सी और डी के. जस्ट मिनट, ये लो, यहां पे दिख नहीं रहा है. ओके, चलो, फर्स्ट है -0.76, second is -0.81, third is -0.67 and fourth one is +1.4 volt. तो रिड्यूसिंग पावर, तो अब याद करवाओ मुझे, रिड्यूसिंग पावर एनोड वाले डिपार्टमेंट में था या कैथोड वाले डिपार्टमेंट में था? जो 4 के हमने देख लेते हैं. चलो, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ दैट इज रिड्यूसिंग पावर, तो वो एनोड वाले पार्ट में है. रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, दैट मीन्स टेंडेंसी टू बी एनोड ज्यादा. अब एनोड की टेंडेंसी ज्यादा तो फिर कैथोड की टेंडेंसी कम. चलो, इतना क्लियर. और हमें एक ही पता है क्या, E0Z हाई देन कैथोड, और रिड्यूसिंग पावर मीन्स एनोड. अब समझ में आया? मतलब हमने क्या किया अभी, चलो फिर से एक बार समझा दूं आपको, कि ये जो आपको 3 दिए हैं ना, ध्यान से देखना, ये जो आपको 3 दिए हैं ना, 1, 2 and 3, तो इनके बेस पे हम यहाँ पे आएंगे. और ये जो आपको 6, 7, 8 दिए हैं, उनके बेस पे हम यहाँ पे आएंगे. और ये एनोड और कैथोड, ये दोनों, वो हम पोटेंशियल से डिसाइड करते हैं. E0Z हाई तो कैथोड, E0Z लो देन एनोड. ओके, तो चलो यहां पे इतना तो क्लियर कि भाई E0Z हाई होगा तो वो कैथोड होगा. ओके, तो अब रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब फर्स्ट का रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट. भाई रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट, रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट नहीं, यहां पे नहीं देखना है, इस साइड पे हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ ये हम कंसिडर करेंगे, यही दोनों. ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखेंगे. चलो, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट, दैट मीन्स टेंडेंसी टू बी एनोड हाईएस्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो दैट मीन्स एनोड की टेंडेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स कैथोड की टेंडेंसी का
इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब टेंडेंसी टू बी कैथोड, चलो कौन होगा बोलो। तो सबसे ज्यादा किसका पावर होगा? हाँ, डी का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट, दैट मीन्स, चलो लॉजिक देखते हैं। डी का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट, दैट मीन्स टेंडेंसी टू बी कैथोड हाईएस्ट। ओके, टेंडेंसी टू बी कैथोड हाईएस्ट, दैट मीन्स टेंडेंसी टू बी एनोड लोएस्ट। आपको लिखना है यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब फर्स्ट की एनोड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। अगेन फर्स्ट आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे आपको 4 नंबर लिखने हैं। ओके, मतलब 4 लेटर्स आपको लिखने हैं, ए बी सी और डी। और इसका कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। समझ आ रहा है? तो जो फर्स्ट आप लिखेंगे उसकी एनोड बनने की टेंडेंसी हाईएस्ट होनी चाहिए, दैट मीन्स कैथोड बनने की टेंडेंसी लोएस्ट होनी चाहिए। तो कैथोड बनने की टेंडेंसी लोएस्ट किसकी होगी? कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल द लोएस्ट होगा। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है? सो फर्स्ट आएगा बी, देन आफ्टर एंड देन आफ्टर डी। और दूसरा एक ऑप्शन इसका इन्वर्ट होगा ही उसमें उस टाइम पे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब समझ में, चलो ये तो फिर मतलब नॉर्मल क्वेश्चन हुए ये 16। तो जिसने मगअप किया होगा उसका तो पता चल ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बेस पे क्वेश्चंस इन्यूमरेबल होंगे। तो फिर आज का लेक्चर वैसे खत्म और अपना ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। ओके, ये जो थियोरी आज हमने की है ना, वो सब 12th का स्टार्टिंग है। मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप आता है और चैप्टर नंबर 3 इसी से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये पोटेंशियल्स और ये सब 12th में आएगा ही। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। सो नाउ फाइनली टुडेज लेक्चर इज ओवर।